موجودہ ازوبیلا عہد قدیم میں اردبیلا کہلاتا تھا اور خوبصورت عمارتوں نے اس عظیم و شان شہر کو دلہن بنا رکھا تھا۔ بہت سے شاہراہ اس شہر کے پاس سے گزرتے تھے۔ اس گنجان آبادی والے شہر کی رونق پورے شباب پر پہنچی ہوئی تھی۔ جہاں اصلی اردبیلا موجود تھا، آج وہاں پرانی عمارتوں کے کھنڈر موجود ہیں۔ بھاری بھاری پتھر اور ہر طرف پھیلا ہوا ملبہ قدیم اردبیلا کی عظمت کا بڑا ثبوت ہے۔ جو اردبیلا ان دنوں آباد ہے، اس میں اور اس تباہ شدہ شہر کے درمیان میل 1.5 میل کا فاصلہ ہے، اور جو اہمیت اردبیلا کو عہد قدیم میں حاصل تھی وہ آج اس شہر کو حاصل نہیں ہے۔ اس جگہ ایک مندر کی عمارت واقع ہے جس کا بیشتر حصہ شکستہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس محبت کے ابھی تک ایسے آثار موجود ہیں کہ جن کو فوٹو لینے اور دیکھنے کے لیے دور دور کے سیاح آتے رہتے ہیں۔ اس محبت کے متعلق مختلف روایات مشہور تھیں۔ اس تباہ شدہ شہر کے نزدیک ایسی بستی موجود تھی جہاں میرا بھتیجا رہتا تھا۔ میں 3 دن کی اجازت لے کر اس جگہ آیا ہوا تھا۔ اس کے گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہ ان دنوں ایک امریکی گروہ کے ساتھ عہد قدیم کے آثار دیکھنے گیا ہوا ہے۔ چونکہ مجھے جلدی واپس لوٹنا تھا، اس لیے میں تھوڑی دیر کے قیام کے بعد اس سے ملنے اسی طرف روانہ ہو گیا تھا کہ وہاں پہنچ کر بہت جلد اسے مل لوں گا، اور وہ مقام کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ بس میں اس کی بیوی کے اصرار کے باوجود گھر سے باہر آ گیا۔ یہ علاقہ بڑی اچھی طرح میرا دیکھا ہوا تھا۔ پتھروں کے چند ٹیلے اس جگہ سے بھی نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ میں اس طرف بڑھنے لگا۔ انقلاب زمانہ کے باعث وہ پتھر جن سے اس خوبصورت شہر کی تعمیر میں کام لیا گیا تھا سیاہ پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میں اس بڑے شہر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف بھاری بھاری سیاہ پتھر پھیلے ہوئے تھے۔ خدا معلوم انہوں نے کس قدر انقلاب دیکھے اور کتنی بار کام آئے۔ ٹوٹی پھوٹی دیواریں، مسمار شدہ چبوترے دور تک نظر آ رہے تھے۔ اس جگہ سے تھوڑے فاصلے پر کسی دیوتا کا مندر تھا۔ اس کا کچھ حصہ ابھی تک اسی طرح باقی تھا۔ میں نے جو اس طرف دیکھا تو چند آدمی اس پرانی عمارت کی ستونوں والی چھت پر دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تمام غیر ملکی معلوم ہو رہے تھے۔ چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بھتیجا بھی وہیں مل جائے گا۔ چنانچہ میں درمیان میں پھیلے ہوئے پتھروں کو روندتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گیا۔ میں نے وہاں 14 آدمی دیکھے۔ وہ تمام امریکن تھے اور ان میں میرا بھتیجا بھی تھا۔ وہ گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو چھوڑ کر میرے پاس پہنچ گیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند باتوں کے بعد اس سے پوچھا، تم پہلے اپنے کام ختم کر لو۔ اس نے کہا، یہ لوگ ایک فلم کمپنی سے وابستہ ہیں، امریکہ سے شوٹنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں انہیں تاریخی باتیں بتلا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا سنہری موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ میری طرف سے اجازت حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوپہر تک وہ لوگ اسی جگہ رہے۔ اس محبت کی مغربی دیوار کے ساتھ انہوں نے 3 خیمے لگا رکھے تھے جہاں ان کا سامان پڑا تھا۔ اس کے بعد ہم سب ایک بڑے خیمے میں پہنچ گئے۔ میرا بھتیجا انگریزی بولنا جانتا تھا اور وہ کافی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ شام کے وقت ہم وہاں سے واپس لوٹے اور پھر مکان پر پہنچ گئے۔ یہاں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ یہ لوگ ایک فلم بنا رہی ہیں۔ فلم کا نام نمرود ہے۔ اس کے چند مناظر انہوں نے فلمائے ہیں۔ خیال ہے کہ یہ لوگ ابھی صحرا میں 3 ماہ تک رہیں گے۔ ان کے ساتھ پروڈیوسر مسٹر سمتھ بھی ہے جو بڑا فراق دل ہے۔ ان دنوں اسے کسی ایسے پرانے مندر کی تلاش تھی کہ جس کے باہر پتھر کا ایک دیوتا موجود ہو۔ پتھر کا دیوتا مندر کے دروازے کے قریب۔ میں غور کرنے لگا۔ اس نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مسٹر سمتھ عجیب قسم کے انسان ہیں۔ اس نے امریکہ میں کسی عرب کی زبانی یہ قصہ سنا ہے کہ اس جگہ چاندنی رات میں سال میں صرف ایک بار لڑکی رقص کرنے آتی ہے اور وہ خنجر ہاتھ میں لے کر رقص کرتی ہے۔ رقص اس مجسمے کے سامنے ہوتا ہے اور وہ دیر تک ناچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس مجسمے کے قدموں پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مسٹر سمتھ کا کہنا ہے کہ اس وقت اس پتھر سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ میں اس بات کو سن کر بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا، زید، یوں تو تمام صحرا، دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ میرا دیکھا بھالا ہے۔ عہد قدیم کے بہت سے آثار اس وقت بھی میرے سامنے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک اس قسم کے بت کے متعلق کچھ نہیں سنا۔ میرے بھتیجے نے کہا، چچا جان آپ سچ کہتے ہیں۔ مسٹر سمتھ کا کہنا ہے کہ یہ بات سگہ راز میں ہے۔ اس عربی نے بڑی قیمت کے عوض ان کو یہ بھید بتلایا ہے۔ لیکن وہ مندر کہاں واقع ہے؟ سمتھ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں نینوا کی عظیم و شان سلطنت کے کھنڈرات موجود ہیں وہیں وہ مندر بھی ہے۔ وہ اس قدر مضبوط بنایا گیا تھا کہ اس کا ابھی بہت سا حصہ اسی طرح محفوظ ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس معاملے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت یکے بعد دیگرے قدیمی آثار
किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगे। अचानक मैंने जैद को दोनों हाथ से झिंझोड़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि वो इमारत इस बड़े खंडरात में होगी जिसे आशूरिया का तबाहशुदा दारुल सल्तनत कहा जाता है। अगरचे वहां जले हुए पत्थर, पिघली हुई पथरीली धात और कांच के टुकड़ों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन उस मंदिर को वहीं होना चाहिए। जैद ने कहा, चाचा जान, मैं भी कई मर्तबा वहां जा चुका हूं, ऐसा बुत तो कहीं नहीं देखा। हो सकता है कि हमने देखकर भी उसको नजरअंदाज कर दिया हो, क्योंकि इससे पहले हमने किसी बुत को भी अहमियत नहीं दी थी। बड़े बड़े सांडों के मुजस्मे दूसरे देवताओं ने जिनमें अक्सर टूट फूट गए हैं जगह जगह पड़े हैं, लेकिन खुदा मालूम मिस्टर स्मिथ को उनमें से कौन से बुत की तलाश है। कम से कम तुम अपनी तरफ से उस तरफ जाने का मशवरा दे दो। जैद ने कहा, मिस्टर स्मिथ साहब की डायरी में भी प्रोग्राम लिखा है। वो इन खंडरों को यकीनन और शायद अपनी नई फिल्म नमरूद का कुछ हिस्सा वहां फिल्माएंगे भी। दूसरे रोज मेरे मशवरे के मुताबिक जैद ने मुझे मिस्टर स्मिथ से मिलवा दिया और उनसे मेरा तारुफ इन लफ्जों में करा दिया कि मैं सहरा की कदीम इमारतों की काफी मालूमात रखता हूँ। स्मिथ ने जो ये सुना तो वो अपनी बेचैन नजरों से मुझे देखने लगा और निहायत ही मतानत से कहा, जनाब, हमें एक ऐसे तजुर्बाकार शख्स की जरूरत है जो इस जगह की पूरी मालूमात रखता हो और कदीम तरीन इमारतों से वाकिफ हो। मैंने उसको यकीन दिलाने वाले लहजे में कहा, मैं इस इलाके से खूब अच्छी तरह वाकिफ हूँ। कदीम दौर के जिन खंडरात, मिसमार शुदा मुअब्बद और दूसरी इमारतें हैं, मैं आपको न सिर्फ वहां तक पहुंचा सकता हूँ बल्कि कुछ न कुछ उनकी तारीख भी बयान कर सकता हूँ। मिस्टर स्मिथ की दोनों आंखें खुशी से चमक उठी। ओह गुड, इससे पहले भी जैद ने आपका तज़किरा किया था और यही कुछ बतलाया था। हम लोग एक फिल्म तैयार कर रहे हैं जिसका नाम नमरूद है। हम यहाँ उसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं और इसके लिए इतना लंबा सफर महज इसीलिए बर्दाश्त किया है कि ज़ेरे तकमील फिल्म में असलियत का रंग पैदा हो जाए। हम जिन दिनों इस तरफ आने का प्रोग्राम बना रहे थे, मेरी एक अरब ताजिर से मुलाकात हो गई। इत्तफाक की बात है कि वो वहां बीमार हो गया। मैंने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया और काफी हद तक उसका ख्याल रखा, लेकिन उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए थे, इसीलिए रोज बरोज उसकी सेहत गिरती गई। एक रोज जबकि मैं उसको देखने गया, उसने मुझे बतलाया कि इस जगह जहां जले हुए खंडरात फैले हुए हैं, वहां एक पुराना मंदिर है जिसे कभी ज़हरा देवी का मंदिर कहा जाता था। वो इमारत बहुत कम शिकस्ता है, उसके दरवाजे पर ही मुजस्मा मौजूद है। माह मार्च में जब चांद पूरा हो जाता है तो वहां एक कारवां पहुंचता है। उसमें एक खूबसूरत लड़की है। सुना है कि वो उस बुत के सामने खंजर लेकर नाचती है। रक्स के दौरान उस नाजनीन पर विजदानी कैफियत तारी हो जाती है, यहाँ तक कि वो निढाल होकर उस बुत के सामने गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। उसने बतलाया कि वो बुत अगरचे महज पत्थर का बना हुआ एक मुजस्मा है, लेकिन उस खूबसूरत लड़की के नाच का उस पत्थर पर भी इतना असर होता है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसने मरने से पहले इस बात की वसीयत की थी कि मैं शूटिंग की गर्ज से वहां पहुंचूं तो उस मुकाम को जरूर फिल्माऊं। उसी की जुबानी मुझे मालूम हुआ कि उसने इस राज को हमेशा पोशीदा रखने की कोशिश की। वो सिर्फ चंद रोज बाद इंतकाल कर गया। मैंने उससे वादा कर लिया था, इसीलिए मैं यहाँ आने के बाद अपने दिल पर बोझ सा महसूस कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि मैं उस मंदिर के पास पहुंचकर अपने दोस्त की आखिरी वसीयत को पूरा कर दूं। जो खास निशानी उस ताजिर ने बतलाई है वो ये है कि उस मंदिर के नीचे एक तहखाना भी है। उसके कहने के मुताबिक वही तहखाना अहद कदीम में अकूबत खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जिसको सजा देना मकसूद होता उसको उसी तहखाने में पहुंचा दिया जाता था। मैं मिस्टर स्मिथ की बातों को बगौर सुन रहा था कि वो किस मुकाम का जिक्र कर रहा है। चुनाचे मैंने उसे इकरार कर लिया कि मैं उसे वहां पहुंचा सकूंगा, बल्कि मैं जैद को बतला दूंगा, वही आपको वहां पहुंचा देगा। शुक्रिया, स्मिथ ने जवाब में कहा। ये फरवरी का महीना है। मेरा ख्याल है कि हम लोग ठीक उस वक्त पर पहुंचे तो अच्छा है जबकि वो कारवां भी वहां पहुंचा हुआ हो। थोड़े दिनों की बात है। बहुत मुनासिब ख्याल है। आप चंद रोज इन खंडरों को फिल्माएं। मैं इसके बाद जैद के हमरा वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे यकीन है कि उस बर्बाद शहर के खंडरों में आपको फिल्म के लिए बेहतरीन मनाजर मिल जाएंगे। स्मिथ ने कहा, मेरी आरजू है कि मैं उस बुत की आंखों से आंसू गिरते हुए देखूं और यह भी तहकीक करूं कि इसमें किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं है। मैंने कहा, जरूर, आपको अपने तहकीकी काम के लिए काफी दिन मिल जाएंगे। हो सकता है उस लड़की से भी आपकी मुलाकात हो जाए। उस रोज बड़ी देर तक मिस्टर स्मिथ से गुफ्तगू होती रही। चूंकि मैंने इकरार कर लिया था, मैंने अपने भतीजे को इस मुकाम की निस्बत से सब कुछ बतला दिया ताकि वह अपनी खिदमत के एवज स्मिथ से फायदा उठा सके। जिस मंदिर का स्मिथ ने जिक्र किया था उसको मैं भी कई मरतबा देख चुका हूँ और उस जगह बुत भी मौजूद है। इसके अलावा ना तो मुझे किसी ऐसे तहखाने का इल्म हो सका जो मौजूद हो
और ना ये मालूम हो सका कि उस बुत के सामने हर साल कोई लड़की चांदनी रात में नाचती है और बुत की आंख से आंसू गिरते हैं। यह बड़ी अजीब और हैरत अंगेज बात थी। मैंने तय किया कि अगर मुमकिन हुआ तो मैं खुद भी इस मौके पर वहां पहुंच जाऊंगा। चुनाचे दूसरे रोज मैं अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गया और सरवर के पास पहुंच गया। वहां का माहौल पहले जैसा ही था और सरवर खोया खोया सा था। नसरीन भी कुछ उदास थी। मैंने सरवर से उदासी और परेशानी का सबब दरियाफ्त किया। उसने कहा, दादा, बस्ती के लोगों ने बिला वजह अदावत कायम कर ली है। अब तुम ही सोचो कि वो गरीब उनका क्या बिगाड़ती है। अव्वल तो खुद उसी ने आना जाना बहुत कम कर दिया है, लेकिन ये लोग उसके खिलाफ झूठी सच्ची बातें बना रही हैं। मैंने सरवर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, उनसे अदावत कायम रखना हमारे लिए अच्छा नहीं है। उनको अगर सलमा पर एतराज है और वो उसकी आमद को पसंद नहीं करते तो तुम उसे इस बस्ती के बजाय किसी दूसरे मुकाम पर मिल लिया करो। इसका तो ये मतलब हुआ कि बस वही मनमानी करेंगे और वो अपने दिल में ये समझेंगे कि मैं उनसे डर गया हूं। नहीं सरवर, ये नहीं होगा, बल्कि वो तो खुश होंगे और ये समझेंगे कि तुमने उनकी बात मान ली। फिर तुम देखना कि यही लोग तुम्हारी खातिर जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस वक्त सरवर के चेहरे से यास अंगेजी टपक रही थी। उसने कहा, दादा, सलमा दुखिया लड़की मालूम होती है। उसकी दोनों आंखों में मजलूमियत के आसार पाए जाते हैं। उसकी आवाज में दर्द और सोज है। यूं मालूम होता है कि वो जमाने के हाथों बुरी तरह सताई गई है। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है और अपना हमदर्द ख्याल करती है, इसीलिए वो इस जगह आ जाती है और काफी काम कर जाती है। अब तुम खुद ही बतलाओ कि मैं कौन से मुंह से उसको ये कह दूं कि आइंदा कसरे आमर का रुख ना करे। इस तरह उसका दिल टूट जाएगा। उसकी तमन्नाओं का खून बहते मैं नहीं देख सकता। जिसे मैंने बड़े तपाक से खुशामदीद कहा हो, उसको धुतकारा नहीं जा सकता। मैं ऐसा किस तरह कर सकता हूं दादा? इतना कहने के बाद सरवर ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांप लिया। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने आगे बढ़कर उसको समझाया और कहा, सरवर, तुम मर्द हो, जवान और मजबूत हो। इस तरह रोना बुजदली की निशानी है। इसमें फिरोज का हाथ है और वही सलमा के खिलाफ बस्ती के लोगों को भड़का रहा है, वरना मैं खुद भी इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सकता था। सरवर ने कहा, अभी कल का जिक्र है कि फिरोज मेरे पास आया था और वह धमकी दे गया है, क्योंकि मैंने उसके कहने पर अमल करने से इनकार कर दिया था। उसका ख्याल है कि सलमा उम्मुल अजल की बेटी है और वह बस्ती के लोगों के लिए हलाकत का सामान जमा कर रही है। लेकिन मैंने इसको मंजूर नहीं किया और जहां तक खुशामद का ताल्लुक है, मैंने उसे भी बाकी नहीं छोड़ा। एक रात मैंने निहायत ही अजीब ख्वाब देखा जो इस कदर भयानक और होशरुबा था कि मैं चौंक कर उठ बैठा। मैं नहीं जानता कि उसका किस कदर हिस्सा बाकी है। मैं बेखबर सो रहा था। यकायक मुझे महसूस हुआ कि हजारों शहनाइयां बज रही हैं। उनकी आवाजें निहायत सुरीली और दिल लुभाने वाली थीं। यूं मालूम होता था कि बहुत दूर किसी की शादी है। मैं कुछ देर उन आवाजों को सुनता रहा। उसके बाद गौर किया कि आवाजें किस तरफ से आ रही हैं। लाइल्मी का पर्दा जल्दी हट गया और यूं मालूम हुआ कि आसमान पर शहनाइयां बज रही हैं। मैं बहुत हैरान हुआ। चुनाचे मैं उसी वक्त सहन में पहुंच गया और बड़े इत्मीनान के साथ आसमान की तरफ देखा। मैं हैरत ज़दगी के आलम में थर्रा उठा। यूं मालूम हुआ कि गोया कुदरत ने उस रात नीले आसमान को नौरानी कंदीलों से सजा दिया हो। नज़ारा इस कदर दिलकश और दिलफरेब था कि मैं देर तक उसी जगह खड़ा सितारों भरे आसमान को देखता रहा। उस रात सितारों की रोशनी कई गुना बढ़ी हुई थी। इससे कबल मैंने कभी इतनी रोशनी नहीं देखी थी। तारीकी खुदा मालूम कौन से सुराख में सिमट कर जा छुपी थी। अभी मैं आसमान को देख ही रहा था कि मैंने छोटे छोटे निहायत ही लतीफ सिमाब देखे। वो रुई के फूले हुए गालों की तरह इधर उधर मंडला रहे थे। मेरे देखते ही देखते वो भी रोशन हो गए, लेकिन सितारों और चांद की रोशनी के मुकाबले में उनकी चमक 10वां हिस्सा भी ना थी। रोशन बादल हजारों की तादाद में थे। मैं अभी देख ही रहा था कि उन बादलों में से 2 बादल जो करीब करीब थे गुलाब के फूलों में तब्दील हो गए। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि चमकने वाले सितारों के दरमियान 2 नौरानी फूल भी हैं जो जलवा दिखला रही हैं। चांद उनसे ज्यादा फासले पर नहीं था। वो बड़ी सुबह-खरामी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद चांद उनके पास पहुंच गया। वह हिलाल नुमा था, लेकिन काफी रोशन था। वो थोड़ी देर तक इसी हालत पर रहा। इसके बाद मैंने ये देखा कि गोया उसमें तब्दीली पैदा होने लगी है। वो बदलते बदलते एक छोटी सी नौरानी कश्ती की शक्ल में नजर आने लगे। मैं बहुत हैरान था और इस्तेजाब के समुंदर में गोते खा रहा था। रात निहायत ही अजीब थी। मैं खामोशी के साथ ये सब कुछ देखता रहा। दोनों उस कश्ती के ऊपर पहुंच गए, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। उस वक्त तेजी से शहनाइयों की आवाजें आने लगीं। मशरिक की तरफ से बेशुमार लंबूतरे शरारे नमूदार हुए और वो तेजी के साथ कश्ती नूर के करीब से गुजर गए।
अब जो मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि आसमान पर एक कश्ती मौजूद है जिस पर एक खूबसूरत जोड़ा रौनक अफरोज है। मर्द की सूरत बिल्कुल सरवर से और औरत की शक्ल, वो यकीनन सलमा थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों दोबारा दो गुलाब के फूलों की शक्ल में तब्दील हो गए। आसमान पर नकारे से बज रहे थे, शहनाइयों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी और चमकने वाले सितारे चांद के गिर्द जमा होने लगे। उस वक्त यूं मालूम हो रहा था कि गोया आसमान पर किसी की बारात है। उसी की वजह से नकारे और शहनाइयां बज रही थीं। अगरचे कश्ती पर अब सिर्फ 2 फूल थे, लेकिन मैं यही समझ रहा था कि उनमें एक मेरा आकाज़ादा सरवर और दूसरी सलमा है। उस वक्त हर तरफ मुसर्रत ही मुसर्रत महसूस हो रही थी। यकायक एक निहायत ही गरजदार और भयानक कहके की आवाज़ बुलंद हुई। इस आवाज़ के साथ ही चमकने वाली सितारों की रोशनी में फर्क आ गया। दोनों फूल कश्ती में उछल पड़े। वही कह कहा दोबारा सुनाई दिया। मैं तहय्युर के आलम में आंखें फाड़ फाड़ के हंसने वाले को देखने लगा, जिसकी हंसी इस कदर भयानक और दिमाग पाश थी वो खुद ना जाने किस कदर खौफनाक होगा। जब मैंने बहुत ही गौर से देखा तो मालूम हुआ कि काफी बुलंदी पर एक द्योनुमा जिस्म फैला हुआ है। वो किसी अजीम तरीन इंसान का स्याह जिस्म मालूम होता था। उसका सर मशरिक की तरफ और दोनों पांव मगरिब की तरफ थे। उसका एक बाजू शुमाल की तरफ और दूसरा जुनूब की तरफ फैला हुआ था। वो साया इस कदर अजीम था कि हर सिमत में नजर तक फैला हुआ था। तीसरी बार फिर कह की आवाज बुलंद हुई। वो आवाज किसी तरह भी बादल की गरज से कम न थी। मेरा दिल दहल गया और जिस्म का खून मुंजमद होने लगा। वो फूल जो कश्ती से अलहदा हो चुके थे वो बुलंद होने की बजाय नीचे की तरफ आ रहे थे। उनमें और चांद में फासला पैदा हो गया था। अचानक ऐसा दिखाई दिया कि गोया मुखालिफ सिमतों से उस स्याह जिस्म पर अंगारे फेंके जा रही हों या उसको आतिशी गोलों का निशाना बनाया जा रहा हो। यकायक उस फैले हुए जिस्म के दोनों हाथ हरकत में आए और वो नीचे की तरफ झुके। फौरन ही बाद ये मालूम हुआ कि उसने अपनी दोनों मुट्ठियों में से फूल बिखेर दिए हों। आसमान की तरफ से गिरने वाले फूल 2 हिस्सों में तकसीम थे। जो दाएं हाथ ने फेंके थे वो अलहदा थे और जो बाएं हाथ ने बिखेरे थे वो अलग थे। चुनाचे मेरे देखते ही देखते दोनों किस्म के फूलों ने उन दोनों फूलों को अपने घेरे में ले लिया और फिर एक फूल के साथ हो गए और बाकी निस्फ फूल दूसरे फूल के साथ शामिल हो गए। लेकिन फर्क नुमाया था। मैं उसी जगह खामोश खड़ा यह हैबतनाक तमाशा देख रहा था। उस वक्त तमाम फूल बड़ी तेजी के साथ जमीन की तरफ चले आ रहे थे। लम्हा लम्हा उन फूलों की बुलंदी कम होती जा रही थी, यहां तक कि मैंने समझ लिया कि फूलों के दोनों ढेर थोड़े थोड़े फासले पर जमीन पर गिर पड़ेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। मैंने देखा कि वो फूल एक मैदान में आ गिरे। एक ढेर शुमाल की तरफ था और दूसरा जनूब की तरफ। चौथी मर्तबा उसी साया की कहकहे की गरज सुनाई दी। मैंने घबराकर आसमान की तरफ देखा। उस पर अंगारों की बारिश चारों तरफ से हो रही थी और ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। यकायक उस साए की दाएं टांग हरकत में आ गई। उसने उसको जमीन की तरफ दराज किया। मैं उसकी तवालत देखकर हैरान रह गया। वो जमीन तक पहुंच गई। देखते ही देखते एक हिस्सा तो जूं का तूं रहा, लेकिन उसके साथ वाला हिस्सा जहां फूलों का ढेर बाकी था पानी का तालाब बन गया। टांग ऊपर उठ गई। चीखने चिल्लाने और चिंगाड़ने की आवाजें सुनाई दी। वो साया कतई तौर पर गायब हो गया। जमीन पर मेरे सामने गुलाब के 2 पौधे नजर आ रहे थे। उनमें से एक पौधा खुशकी पर था और दूसरा तालाब में। हवा के झोंके दोनों पौधों की नाजुक और लचकदार शाखों से अटकेलियां कर रहे थे। इसके बाद मैंने उन पौधों की शाखों पर 2 फूल देखे। उनके खिलते ही आसमान से गुलाब के फूलों की बारिश शुरू हो गई। मेरे देखते ही गिरने वाले फूल पौधों की शाखों से पैवस्ता हो गए। उनके दरमियान एक दीवार सी हाइल हो गई। ये आवाज उफक के उस पार से बुलंद हुई और फिर तेजी से हर तरफ फैल गई। मैंने उन पौधों के दरमियान में से धुएं की एक दीवार को बुलंद होते देखा जो बतदरीज बुलंद होती गई और वो इस कदर बुलंद हुई कि सितारों की बुलंदी तक पहुंच गई। वो कुछ देर तक तो मुझे नजर आती रही, बाद अज़ां वो भी दूसरी चीजों की तरह मादूम हो गई। मुझे उस वक्त तक कुछ भी इल्म न था कि क्या कुछ होने वाला है। दोनों पौधों के तने और उनकी तमाम शाखें कांटों से भरी हुई थीं। दोनों पौधों में एक एक फूल खिल गया। जो पौधा खुशकी पर था उसका फूल शगुफ्ता हुआ तो उसमें महज लम्हे भर के लिए सरवर का चेहरा दिखाई दिया, और जो फूल दूसरे पौधे की शाख पर खिला था उसमें सलमा का चेहरा दिखाई दिया। किसी ने भयानक आवाज में कहा, खुशकी खुशकी है और तरी तरी है। खुशकी और तरी हमेशा अलहदा अलहदा रहेगी। मैंने आसमान की तरफ देखा। वो साया नजर आया और उस वक्त यूं महसूस हुआ कि गोया तमाम आसमान पर
आतिशी चादर फैली हुई है। इसी तरह वक्त गुजरता गया, रात खत्म हो गई। मशरिक से सूरज ने खुद को नमूदार किया। रंगारंग परिंदे दरख्तों की शाखों पर बैठे वहदत के नगमे अलापने लगे। रात के खत्म होते ही सकूत का तिलिस्म पाश पाश हो गया। यूं मालूम हुआ कि गोया मुर्दा दुनिया में जिंदगी की लहर दौड़ गई है। शोरो शर बुलंद हुए, हर किस्म के हंगामों का चक्कर शुरू हो गया। मैंने दोनों फूलों पर मंडलाने वाली दो रंगीन तितलियों को देखा। दोनों अलहदा अलहदा गुलाब के शगुफ्ता फूलों पर मंडला रही थीं, मगर उन दोनों के दरमियान एक जागे स्याह भी मौजूद था जो अपने दोनों पंख फैलाए किसी खास मौके का मुंतजिर था। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने उस खिड़की की तरफ देखा। रात करीबुल ख़त्म थी। जो ख्वाब मैंने उस रात देखा, शायद मैं उसे कभी भी फरामोश नहीं कर सकूंगा। इस तरह मेरे दिल में सलमा के खिलाफ जो बुराई पैदा हो गई थी, इस ख्वाब के बाद वो दूर हो गई और यूं मालूम हुआ कि गोया उन दोनों को अलहदा न किया जा सकेगा। इसके बाद मैं जागता रहा और इसी ख्वाब पर गौर करता रहा। इस अजीब ख्वाब की ताबीर का पता न चल सका। अगर मैं कुछ देर तक और सोया रहता तो मुझे ये इल्म हो जाता कि जागे स्याह ने उनमें से कौन सी तितली का शिकार किया। मैंने ख्वाब जरूर देखा, नामुकम्मल और अधूरा, इसलिए मैं किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मैं दोनों हाथों से सर थामे खामोश बैठा सोच रहा था कि कुछ देर बाद मैंने चाहा कि उठूं और पांव पलंग पर से अभी लटकाए थे कि मैंने नीचे से स्याह रंग के एक नाग को देखा जो अपना फन पूरी तरह उठाए हुए था। उसकी दोनों आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं। मैंने दहशत ज़दा होकर टांगों को ऊपर उठाया और नाग दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। इस दौरान में उसने बार बार पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी चमकदार आंखों से मुझे यूं मालूम हो रहा था कि गोया वो मुझे घूर रहा है। नाग दरवाजे के पास पहुंच चुका था और दरवाजा भी बंद था। उसके छोटे शगाफों में से रोशनी अंदर आने लगी। नाग ने मेरे सामने एक सुराख के साथ अपने सर को लगाया और वो उसी में से बाहर निकल गया। उस वक्त उस जहरीले नाग के खौफ से मेरा दिल धड़क रहा था और मैं सहमा हुआ था। अगर वो खुद ही इस जगह से ना चला जाता तो वो मेरी गफलत की वजह से मुझे डस भी सकता था। मैं 10-15 मिनट तक उसी जगह बैठा रहा। इसके बाद दरवाजे को खोलकर सहन में देखा। नाग गायब हो चुका था। उस वक्त हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। सरवर की ख्वाबगाह का दरवाजा बिल्कुल सामने ही था। अचानक मुझे एक धुंधला शख्स उसमें से निकलता नजर आया। मैं दरवाजे की ओट में होकर बगौर उस गैरवाज़ी अक्स को देखने लगा। उसमें और नसरीन में बिल्कुल फर्क ना था। वो रंजीदा नजर आ रही थी। उसने पलटकर उस ख्वाबगाह की तरफ एक नज़र देखा और इसके बाद वो बाग की तरफ बढ़ने लगी और दूर होती चली गई। मेरे देखते ही देखते वो बाग में दाखिल हो गई। उस वक्त मेरे दिल पर बोझ तारी हो चुका था। मैंने दर्द भरी आवाज में उसे ये कहते सुना, अरमान तड़पते हैं, सिसकती है तमन्ना, मजलूम की दुनिया है ये मगमूम की दुनिया, जल जाए नशेमन ना कहीं सब्र सुकून का, चरखे कौहन से गिरने को है बिजली भी चमन में। वही आवाज, वही लहजा और वही शक्लो सूरत। उसे मैंने सरवर की ख्वाबगाह से निकलते देखा। वो यकीनन नसरीन की माँ की रूह थी। फरते गम से मेरा सर झुक गया। दोनों आंखें चमकते आंसुओं से भर गईं। चुनाचे मैं उसी जगह खड़ा उजर करता रहा। उसके बाद दर्द भरी आवाज सुनाई दी, लेकिन बहुत दूर। यूं मालूम हुआ कि कोई गमनाक लहजे में गा रहा है। मेरी तबीयत भारी हो चुकी थी, इसलिए मैं उस रोज सरवर की ख्वाबगाह में उसको जगाने के लिए भी ना जा सका। मैं इन्हीं ख्यालात में मुनहमिक था कि रूह क्यों आई, वो इस कदर उदास और गमजदा क्यों थी, कहीं कोई और आफत तो आने वाली नहीं। मेरा दिल टूट गया। दिन की रोशनी में हालांकि उस वक्त इजाफा हो रहा था, लेकिन मेरी आंखों में दुनिया तारीक हो गई। देर तक मेरे कानों में उस रूह की दर्द भरी आवाज गूंजती रही। कुदरत ने उस दुखियारी रूह में सोज कूट कूट कर भर दिया था। फिरोज बहन के गम में पागल हो रहा था। नसरीन माँ की शफकत से महरूम हो चुकी थी। सरवर बीवी की मौत के बाद नीम पागल हो गया था और मुझे इस खानदान की तबाही का गम खाए जा रहा था। मैं देर तक अपने कमरे में बैठा रहा और जब बाहर निकला तो हर तरफ धूप फैल चुकी थी। सरवर और नसरीन दालान में थे। मुझे देखते ही आकाजादे ने कहा, क्यों दादा, आज क्या बात है, बहुत देर से उठे हो? देखो ना, धूप फैल चुकी है। मुआफी चाहता हूँ बेटा, देर हो गई। इतना कहने के बाद मैं उनके लिए नाश्ता तैयार करने में मसरूफ हो गया। तीसरे रोज दोपहर के वक्त जबकि सूरज अंगारे जहन्नुम बना हुआ कुर्रे अर्ज को गुसीली नजरों से घूर रहा था, मैं बाहर से घर की तरफ एक काम करने के बाद वापस आ रहा था और यह भी जानता था कि सलमा आई हुई है। उस रोज मैंने सरवर के खिलाफ लोगों में इंतहा से ज्यादा गमो गुस्सा देखा। वो बड़े गिरोह की सूरत में जमा होकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।
ان کے منصوبے نہایت ہی خطرناک تھے۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہاں تک کہتے سنا کہ سرور کو اس بستی سے نکال دیا جائے تو اچھا ہے، نہ یہ یہاں ہوگا اور نہ ام الاجل کی بیٹی اس سے ملنے قصر احمر میں آئے گی۔ میں اس قسم کی باتیں سن کر بدحواس ہو گیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ طوفان قصر احمر پر اب ٹوٹنے ہی والا ہے۔ ہم دونوں مل کر بھی اس بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے، چنانچہ میں بہت تیزی سے وہاں پہنچ گیا۔ خوبصورت سلمیٰ نسرین کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بالوں کو ٹھیک کر رہی تھی۔ سرور بھی تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ میں نے اس جگہ پہنچنے کے بعد سرور کو ایک طرف بلا کر سمجھایا اور بتلایا کہ آج بستی کے لوگوں میں بہت اشتعال پایا جا رہا ہے اور وہ جمع ہو رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سب مل کر ہم پر حملہ کر دیں۔ اس وقت سلمیٰ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو اچھا ہے۔ سرور کو یہ بات ناگوار گزری، اس کے بشرے سے غصہ ظاہر ہونے لگا۔ اس نے کہا، دادا کیسی باتیں کرتے ہو؟ حملہ کرنا کیا آسان کام ہے؟ میرا گھر ہے، میں خواہ کسی کو یہاں بلاؤں، ان کا واسطہ؟ میں نے دوبارہ جرأت کی۔ بیٹا وہ سلمیٰ کو منحوس سمجھتی ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ ام الاجل کی بیٹی ہے اور نحوست میں اپنی ماں سے کم نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے دادا، میں سلمیٰ سے معلوم کر چکا ہوں، ام الاجل اس کی ماں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے فیروز کی باتوں میں آ کر ناحق بغض کو اپنا لیا ہے۔ میں نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن سرور نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس لوٹ گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میرے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس وقت سلمیٰ یہاں سے ٹل جائے تو اچھا ہے۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد آوازیں آنے لگیں، مختلف قسم کے جملے استعمال کیے جا رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سن رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ برے ارادے سے اس طرف آ رہے ہیں۔ ان آوازوں کو سن کر پری چہرہ سلمیٰ پر بھی بدحواسی پھیل گئی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں دادا، یہ کس کی آوازیں ہیں؟ کچھ شرپسند لوگ ہیں، شرارت پر آمادہ ہیں، خدا خیر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرف آ رہی ہوں۔ یقیناً اسی طرف آ رہی ہیں۔ اب وہ لوگ نزدیک آ چکے تھے۔ اس لال عمارت کو پھونک دو، سرور کو قتل کر دو، سلمیٰ کی ہڈیوں کا چورنا بن جائے گا۔ بیٹا، میں نے سرور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، فی الحال سلمیٰ کو اس جگہ سے علیحدہ کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ سرور نے اسی وقت اس کو ساتھ لیا اور ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ طوفانی شور بتدریج ہمارے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کو بند کر دیا تاکہ لوگ اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اس وقت معصوم نسرین سہمی ہوئی تھی، وہ کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی اپنے باپ کے منہ کو تکنے لگتی۔ اس کی حیرت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ تک ادا نہ کر سکی۔ ہم دونوں کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ شور و گل کے ذریعے ان کے دروازے پر پہنچ جانے کا علم ہو گیا۔ یکا یک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ سرور کی دونوں آنکھیں غصے سے چمکنے لگیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے روک لیا اور دبی ہوئی آواز میں کہا، دشمن ہجوم کے منہ لگنا اچھی بات نہیں ہے، آپ اسی جگہ ٹھہریں، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ شور مچا رہے ہیں دادا، سرور نے کہا۔ میں خود اس طرف جاتا ہوں، جو مناسب ہوگا جواب دے لوں گا۔ دروازہ کھولو، باہر سے کوئی چیخا۔ فوراً دروازہ کھول دو ورنہ، دوسری آواز بلند ہوئی۔ توڑ ڈالو اس دروازے کو، کسی تیسرے شخص نے کہا۔ اس کے بعد دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اب میں وہاں پہنچ چکا تھا، چنانچہ میں نے ملائم لہجے میں کہا، کیا بات ہے محترم؟ پہلے دروازہ کھولو پھر بتایا جائے گا، آپ کچھ تو فرمائیں۔ دوبارہ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تم دروازہ کھولتے ہو یا نہیں؟ نہیں کھولتے تو پھر ہم اس کو توڑ ڈالیں گے، میں نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ لیکن کوئی مقصد تو ظاہر کرو، اس قدر تشدد مناسب نہیں ہے۔ اس ام الاجل کی منحوس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، یہ فیروز کی آواز تھی۔ ابھی میں جواب نہ دینے پایا تھا کہ سرور نے چلا کر کہا، دادا انکار کر دو، انکار؟ صاف صاف کہہ دو کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا جواب دوں۔ باہر سے دروازے کو توڑنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ اس وقت جب کہ باہر طوفان برپا تھا، میں سیدھا سلمیٰ کے کمرے میں پہنچ گیا اور اس کو وہاں سے نکال کر باغ کی طرف لے گیا۔ لو تم اس طرف سے نکل جاؤ، خدا کے لیے سلمیٰ جلدی نکل جاؤ، وہ لوگ داخل ہوا ہی چاہتے ہیں، اگر وہ آ گئی تو تم کو بچانا دشوار ہو جائے گا۔ اس وقت خوبصورت سلمیٰ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، اس کے دونوں ہونٹ آپس میں وابستہ تھے، اس کا لاغر جسم لرز رہا تھا۔ میں نے اس کو کپکپی کی حالت میں اس طرف بڑھتے دیکھا، خیال تھا کہ وہ اس راہ سے باہر نکل جائے گی۔ میں اسی جگہ کھڑا رہا یہاں تک کہ سلمیٰ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد میں پلٹ کر سرور کے پاس پہنچ گیا۔ دروازے کو بری طرح سے پیٹا جا رہا تھا، اس کو توڑ دینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا رہی تھی۔
उस वक्त सरवर की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने कहा, दादा, अगर ये लोग अंदर आने में कामयाब हो भी गए तो पहले मैं खत्म हो जाऊंगा। सलमा पर बाद में आंच आने दूंगा। वो हमारे पास मेहमान की हैसियत से है। ये लोग उस पर जुल्म सितम ढाना चाहते हैं। मैंने दोबारा दरवाजे के पास पहुंचकर उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब इस कदर मुश्तिल थे कि वो मेरी कोई बात भी सुनने के लिए तैयार न हो सके। दरवाजे की हालत इस कदर रद्दी हो चुकी थी कि अब उसके टूटने में कोई शक नहीं रहा था। अचानक दरवाजे का एक हिस्सा अंदर आ गिरा और 4 आदमी भी अपने जोर में फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़े। उनमें एक फेरोज भी था, नसरीन का मामू। उसने उठते ही कहा, सरवर, उस मनहूस लड़की को मेरे हवाले कर दो। मेरी बहन की जान उसकी वजह से गई है। इतना कहने के बाद उसने चमकदार खंजर निकाल लिया। मैं आगे बढ़ा ताकि फेरोज को समझाऊं। उस वक्त उसका गुस्सा बढ़ा हुआ था। उसके चेहरे से जलाल टपक रहा था। उसने मेरी ज़ईफ़ी का ख्याल किए बगैर मुझे इतनी जोर से एक तरफ धकेला कि मैं औंधे मुंह जा गिरा। सर से खून बहने लगा। सरवर चीखा, फेरोज, क्या तुम पागल हो गए हो? इनके बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया? हाँ, ओ खूनी, मैं वाकई पागल हो चुका हूँ। तुमने मेरी बहन को मार डाला। उसकी मौत के बाद सिर्फ मैं पागल नहीं हो सकता था। बतलाओ, वो मनहूस लड़की कहाँ है? लेकिन तुम कौन होते हो ऐसा सवाल करने वाले? हम सब कुछ होते हैं। हम तुमको भी कसरे अहमर से निकाल देंगे। उस मनहूस लड़की को हमारे सपुर्द कर दो। सबके सब चीखने लगे। नहीं, मैं उसे नहीं दे सकता, सरवर चिल्लाया। मैं उस वक्त उठने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा सरवर, फिरोज चीखा। तो लो, तैयार हो जाओ। इससे कबल के मैं उसको रोकता। वो बड़ी फुर्ती से खंजर तानकर सरवर की तरफ भूखे शेर की तरह झपटा। नसरीन सहमी हुई अपने बाप के पास खड़ी थी। उसने फिरोज को जुनून अंगेजी के आलम में हमलावर देखा तो वो चिल्ला उठी, मामू। वो बाप के सीने के सामने थी। उसके दोनों दुबले बाजू बाप की हिफाजत के लिए फैल चुके थे। वैशी फिरोज वार कर चुका था। जो खंजर सरवर के शकम में दाखिल होने वाला था, वही खंजर मासूम नसरीन के सीने में दाखिल हो गया। अब्बा जान, वो रोंदी हुई आवाज में चीखी। उसके सीने से खून की फवार छूटी। मैंने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांप लिया। उस वक्त बाप की नजरों में दुनिया तारीक हो रही थी। उसने रखी हुई कुर्सी उठाकर फिरोज के सर पर ताकत से दे मारी कि वो गिर पड़ा। लेकिन उस वक्त सरवर पर चारों तरफ से हमला हुआ और वो मेरे देखते ही देखते जख्मी होकर इस तरह फर्श पर गिरा कि नसरीन उसके सीने पर पड़ी थी। फर्श पर खून फैल चुका था। मैंने तेजी से खुद को सरवर के पास पहुंचाया और उसकी हिफाजत के लिए जो कुछ कर सकता था करने लगा। फिरोज भी जख्मी हो चुका था। 2 आदमी उसको उस जगह से लेकर गए और दूसरों ने पूरे मकान की तलाशी शुरू कर दी। ये काम बड़ी तेजी के साथ पाए तकमील को पहुंच गया। वो यहाँ नहीं है और ये लड़की मर रही है। बस आओ, लौट चलें। वैसे तो बर्बरियत का एक अजीम तूफान था। खून रेज सैलाब था जो कसरे अहमर में दाखिल हुआ और उसके बाद कसरे अहमर को मासूम नसरीन के खून से सुरख करके वापस लौट गया। अब्बा जान, आंखें खोलिए, देखिए ना। नसरीन की आंखें पथराई जा रही थीं। मैंने जल्दी से सरवर के चेहरे पर पानी के छींटे दे मारे। वो उठा और मासूम नसरीन की यह हालत देखकर चीख पड़ा, मेरी बच्ची, देखिए ना, वो सामने दरवाजे की तरफ अम्मी खड़ी हैं। वो मुझे लेने आई हैं। नहीं नहीं नसरीन, मैं तुमको उनके साथ नहीं जाने दूंगा। बेटी, अपने बाप को तन्हा ना छोड़ो। वो उसे चूमने लगा। उसके खून को अपने चेहरे पर मल लिया। वो देखिए, अम्मी बाजू फैलाए आगे आ रही हैं। नसरीन, नसरीन, अम्मी, लो मुझे गोद में ले लो। कहाँ चली गई थी आप? नसरीन, मुझे बर्बाद मत करो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब्बा जान, अम्मी आई और आप रोने लगे। हंसिए हंसिए, देखिए ना, मैं आज किस कदर खुश हूं। ये देखो, मैं मुस्कुरा रही हूं। उसके नाजुक तरीन मासूम होंठों पर तबस्सुम की झलक नमूदार हुई और इसके फौरन बाद ही उसका सर एक तरफ ढलक गया। यूं महसूस हुआ कि उसका सांस टूट गया है। नसरीन अब खामोश थी, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी दोनों आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट बदस्तूर मौजूद थी। मैं लुट गया बाबा। सरवर पिछाड़ खाकर गिर पड़ा। मैंने नसरीन की लाश को संभाला, उसको अपने दोनों हाथों पर उठाकर पलंग पर लिटा दिया और उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सरवर अभी तक बेहोश पड़ा था। बस्ती के लोग हलाकत अंगेजी का मुजाहरा करने के बाद वापस जा चुके थे। कसरे अहमर वीरान था। निशाने अजल नसरीन अपनी आंखें बंद किए खामोश पड़ी थी। इस बड़े खानदान की तबाही मेरी आंखों के सामने अमल में आ चुकी थी। कुछ देर बाद सरवर भी होश में आ गया और वो दोबारा नसरीन की लाश से लिपट लिपट कर रोने लगा।
میں نے اس کو بمشکل سنبھالا۔ اس کے بعد نسرین کے لیے سامان تجہیز و تکفین مہیا کیا گیا۔ پڑوس کے چند نیک اور فرشتہ خصلت لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ غروب آفتاب کے 1 گھنٹے بعد ہم معصوم نسرین کو لحد میں سلا کر منحوس عمارت میں واپس آ گئے۔ اس روز مطلع غبار آلود تھا، ستارے بھی نہ جانے کہاں جا چھپے تھے، ہر طرف اندھیرا ہو رہا تھا۔ سرور کی دونوں آنکھیں روتے روتے سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اس نے خود کو کرسی پر گراتے ہوئے کہا، دادا، سلمہ کو رات کے اندھیرے میں باہر نکال دو۔ قصر احمر واقعی منحوس ہے۔ کاش میں پہلے ہی آپ کی بات مان کر ترک سکونت اختیار کر لیتا تو اچھا تھا۔ جس مکان میں نسرین کو ہنستے کھلکھلاتے اور کھیلتے دیکھتا تھا، اب اس کی غیر موجودگی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اسے نکال دو تاکہ میں اپنے بزرگوں کی اس منحوس عمارت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے پھینک دوں۔ اسے تو پہلے ہی حفاظت سے باہر پہنچا دیا گیا ہے۔ واقعی؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جی ہاں، باغ کے اس تنگ راستے سے۔ اگر میں اسے باہر نہ نکال دیتا تو بستی کے لوگ یقیناً اس کو قتل کر دیتے۔ انہوں نے اچھی طرح تلاشی لے لی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم حق کے مہمان نوازی ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر سلمہ بھی نسرین کی طرح قتل ہو جاتی تو ہمارا منہ کالا ہو جاتا، محبت بدنام ہو جاتی، وفا کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ اب اس جگہ نہ نسرین ہے اور نہ اس کی والدہ اور نہ وہ خوبصورت سلمہ موجود ہے جس نے میری خشک زندگی میں شامل ہونے کے بعد میرے لیے ایک نئی راہ کھول دی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ سرور کا منہ دیکھ رہا تھا۔ دادا، میں تو اس منحوس عمارت میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ آج بزرگوں کی اس منحوس عمارت کا نشان تک ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ عمارت باقی رہی تو نہ جانے اپنی موجودگی کے باعث کب تک ہلاکت برپا کرتی رہے۔ اس نے اسی وقت کسی پاگل کی طرح قصر احمر کے در و دیوار پر تیل اور پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس وقت سرور پر جنون انگیز کیفیت طاری تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ روکنے سے نہ رکے گا۔ دادا، اس منحوس عمارت میں سے کوئی چیز نہ نکالو، کیونکہ وہ بھی یقیناً نحوست لیے ہوئے ہوگی۔ آؤ اب ہم باہر چلیں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچ لیا۔ اچانک قصر احمر سے شرارے بلند ہونے لگے۔ ہم 10-12 گز کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ شعلے بڑی تیزی سے بڑھے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پوری عمارت کو گھیر لیا۔ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بستی کے تمام لوگوں کو اسی وقت علم ہو گیا کہ قصر احمر جل رہا تھا، مکان جل رہا تھا اور سرور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور ساتھ ہی جیسے میرا دل بھی جل رہا تھا۔ ہم نے رات وہیں گزاری۔ اس کے بعد سرور نے مجھے کہا کہ وہ اس بستی کو بھی چھوڑ دینا چاہتا ہے، لہٰذا سرور کا خیال تھا کہ میں آئندہ کے لیے اس سے جدائی اختیار کر لوں۔ اس مصیبت کے وقت میں اسے علیحدہ ہو جاؤں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہوئے کہا، بیٹا، تم میرے بڑے آقا کی نشانی ہو۔ میں تمہیں اس حالت میں کس طرح دھوکہ دے سکتا ہوں؟ میں مرنے سے قبل ان مبارک قدموں سے دور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں نے سرور کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ اس وقت میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے سرور کے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا، غرض یہ کہ سرور مجھے علیحدگی پر مجبور نہ کر سکا۔ اس وقت میں یہ معلوم نہ کر سکا کہ آئندہ کے لیے سرور کس طرح اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ میں نے موقع محل پا کر سرور سے معلوم بھی کیا، لیکن اس نے جواب میں یہی کہہ دیا، دادا، ابھی تک میں خود بھی یہ نہیں جانتا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور ہماری منزل مقصود کون سی ہے۔ فی الحال ہم میں اور برباد لوگوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ قصر احمر کو جلے پورے 9 ماہ گزر چکے تھے اور ان دنوں ہم خوبصورت شہر بیروت کے ایک عالیشان ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سرور کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو سیاحت کا مشورہ دیا تھا، جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہم خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ سرور اس قدر مصروف ہو جائے کہ اس کے دماغ سے ماضی کے غمناک نقوش دھندلے پڑ جائیں اور یہ اپنی باقی زندگی پرسکون گزار سکے۔ میں شروع سے اس کوشش میں تھا کہ میرا آقا زادہ پوری طرح سیاحت میں دلچسپی لینے لگے۔ مجھے اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیابی ہو چکی تھی، کیونکہ سرور آثار قدیمہ سے دلچسپی لینے لگا تھا۔ ہم ان دنوں بیروت میں اسی مقصد کے پیش نظر ٹھہرے تھے۔ اس دوران میں بھی سلمہ اس کے دماغ پر چھائی رہی، لیکن اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روز دوپہر کے وقت جبکہ شدید حبس طاری تھا اور آسمان سے سورج ریگے زار شام پر انگارے برسا رہا تھا، ہم اپنے کمرے میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ طے یہ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں اس پرانے شہر کی کون کون سی تاریخی عمارتوں کو دیکھنا چاہیے۔ سیلنگ فین فل سپیڈ پر چل رہا تھا، لیکن اسے جو ہوا نکل رہی تھی وہ بھی گرم تھی۔ اچانک ہوٹل بوائے نے اندر آنے کے بعد سرور سے کہا،
आपसे एक साहब मिलना चाहते हैं। मैं चौंक पड़ा। सरवर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मालूम होता है कि इसमें कुछ भूल है। इस जगह मेरा मिलने वाला कोई भी नहीं। क्या उसने मेरा नाम लिया है? उसने इनकारी में सर को हिलाते हुए कहा, जी नाम तो नहीं लिया। मैंने कहा, तो फिर तुम हमारे पास क्यों आए हो? लड़के ने जवाब दिया, वो साहब कहते हैं कि हमें उस मुसाफिर से मिलना है जो कमरा नंबर 19 में ठहरा हुआ है, और ये नंबर आप ही के कमरे का है। सरवर ने थोड़ी देर के बाद कहा, अच्छा उसको यहाँ भेज दो। लड़का उसी वक्त वापस लौट गया। सरवर ने कहा, ये कौन हो सकता है? मैं खुद भी राय कायम नहीं कर सका। मैंने जवाब दिया, खैर कोई बात नहीं, मिल लेने से क्या नुकसान है। मुमकिन है कोई जानने वाला निकल आए, लेकिन ताज्जुब जरूर है। अभी यही तज़किरा हो रहा था कि एक शख्स जो कि सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस था, पुरवकार तरीके पर उस जगह दाखिल हुआ। उसके चेहरे का रंग जर्द, दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद, कद लंबा, हाथ पांव दुबले, लेकिन सेहत के लिहाज से बहुत मौजूद था। उसने कमरे में पहुंचकर बड़ी बेतकल्लुफी से कुर्सी संभाल ली। मैं उसे बगौर देख रहा था और यही सरवर का भी हाल था। मुझे यकीन है कि मेरी तरह वो भी नौवारिद से लाइलम था। सरवर ने उसको बैठने के बाद पूछा, क्या जनाब को कुछ मुझसे काम है? जी हाँ, बूढ़े ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। गनीमत है जो मुलाकात हो गई, वरना शायद दोबारा और सहबारा भी हाजिरी देनी पड़ती। मेरे ख्याल में तो इसमें कुछ गलत फहमी कार फरमा नजर आती है। सरवर ने कहा, क्या मतलब? किस किस्म की गलत फहमी? मैंने मदाखलत करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आप हम दोनों के लिए कतई अजनबी हैं, इसलिए हो सकता है कि आप। उसने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा, अरे नहीं साहब, ये भी एक ही रही। अगरचे ऐसा नहीं है, लेकिन आप यही समझ लें कि यह हमारी पहली मुलाकात है, वरना यह हकीकत है कि मैं कभी गलती नहीं खाता। जिसे एक बार देख लूं उसको हमेशा याद रखता हूं, और उनको तो, वो तंज करने लगा, खूब अच्छी तरह जानता हूं। आप अगरचे, लेकिन फिर भी जलवे मेरी निगाह कोनों मकान की हैं। मुझसे वो छुप के जाएंगे कहाँ? ऐसे कहाँ की हैं? मैं टिकटिकी बांधे उस तरफ देखे जा रहा था। अचानक उसकी आंखों पर मेरी नजरें जमकर रह गईं। उफ, मेरा दिल डूबने लगा। और उस वक्त यूं महसूस हुआ कि गोया हमारे दरमियान बदली हुई सूरत में वही नाग चशम पुरस्रार बूढ़ा है जो पहले भी हैरतनाक तौर पर देखा जा चुका है। उसकी आंखों की वही कैफियत थी। वो बातें किए जा रहा था, मगर उसकी पलकें बिल्कुल साकित थीं। आंखों में सांप की सी आंखों की सी चमक मौजूद थी। अगरचे बज़ाहिर वो एक नातवा बूढ़ा था, लेकिन जूं-जूं वक्त गुजरता जा रहा था उसकी हैबत हम पर तारी होती जा रही थी। सरवर ने इधर उधर की बातों के बाद उससे पूछा, अच्छा फरमाएं कि आप क्या चाहती हैं और कौन सा मकसद लेकर इस जगह तशरीफ लाई हैं? सफ़ेद पोश बूढ़े ने कहा, मेरा मकसद महज आपके मुफाद के लिए है। मैं इस वक्त जो कुछ कहने लगा हूं उस पर बरहम होने की जरूरत नहीं है, और ना उस पर नाराज होना चाहिए। पहले तमाम बात सुन लो, उसके बाद गौर करो। फैसला तुम्हारे इख्तियार में है, समझे? मैंने अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुनिए साहब, इस किस्म की पहेलियों को समझने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। जो कुछ भी कहना है वो साफ और वाज़े लफ्जों में कह दीजिए। नौवारिद बूढ़े ने अपनी खतरनाक आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, जनाब थोड़ी देर के लिए आपको खामोश रहना चाहिए। मैं इनसे बात करने आया हूँ और इन्हीं से जवाब चाहता हूँ। आप नाहक दरमियान में टपक पड़ते हैं। इस तरह गुफ्तगू में बदमज़गी और तवालत पैदा हो जाती है। मैं सिर्फ 2 बातों में मामला ख़त्म कर देना चाहता हूँ। सरवर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा दादा, आप ज़रा सुनते ही जाइए। चुनाचे इस तजवीज़ से उस नाग चशम बूढ़े ने सरवर को मेरी इमदाद से आर्जी तौर पर महरूम कर दिया। मुझे खामोश होना पड़ा। इसके बाद उसने बड़ा ही अजीब और मनहूस मामला पेश कर दिया। तुम्हें खुदकुशी करके इस चक्कर को ख़त्म कर लेना चाहिए। खुदकुशी? और फिर? मैं कुछ नहीं समझ सका। उसने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, दोस्त, तुम्हारी रूह एक भयानक और खतरनाक चक्कर में फंस गई है। जब तक आप जिंदा हैं ना ये चक्कर खत्म होगा और ना सुकून हासिल होगा। अगर तुम ये कहो कि चक्कर कौन सा है तो खुद अपने माजी पर गौर करो। तुम्हारी मनकूहा बीवी की मौत, बस्ती के लोगों की मुखालफत, तुम्हारी बेटी की हलाकत और उस लाल मकान की आतिशज़दगी जिसे तुम्हारे बुजुर्गों ने माकूल रकम देकर तैयार किया था। और फिर ये चक्कर नहीं तो और क्या है? मैंने जो उसकी बात को सुना तो मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने जुर्रत करके कहा, अगर नागवार ना हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? उसने मेरी तरफ घूरा। आप जरा अपनी चोंच बंद ही रखें तो अच्छा है, मैं अभी चला जाऊंगा। इसके बाद बूढ़ा दोबारा सरवर की तरफ मुतवज्जा हो गया। और वो लड़की, शायद सलमा, जो आपसे, खैर एक मनहूस बुढ़िया भी इस घिनौनी साजिश में शरीक है। जवान लड़की बार बार नौजवानों की अनमोल जिंदगी से हलाकत आफरी खेल खेलती है।
वो अपनी पुरफरेब मोहब्बत का सौदा करती रहती है। पुरफरेब सौदा बज़ाहिर वो मोहब्बत के मामले में नरम और मासूम नजर आती है, लेकिन यकीन करो उसका दूसरा रुख निहायत ही खतरनाक है। वो कौवा है। शायद तुम ये नहीं जानते और ना उसे जान सकते हो। उसने अपनी मोहब्बत का मकरो फरेब से भरा हुआ जाल तुम पर फैला दिया। वो तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा चुकी है। अब उस जाल से निकलना इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम इनकार मोहब्बत के बाद खुदकुशी कर लो। इस तरह वो अपने मकसद में नाकाम रह जाएगी और तुम्हारी रूह अजियत से महफूज हो जाएगी। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखो कि फिर तुम्हारी रूह भी इस चक्कर से निजात हासिल न कर सकेगी। उसकी मोहब्बत एक पोशीदा फरेब है। उसकी बातें जादू हैं, उसके वादे वो महज वादे हैं। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगा। गौर करो कि तुम्हें उसके तफैल अब तक किस कदर हवादिस का शिकार बनना पड़ा है। खुदकुशी करो और निजात हासिल कर लो। मैं जोश के आलम में कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। जिंदगी को मौत से बदलना हमाकत है। तुम इस जगह से फौरन निकल जाओ, अभी चले जाओ। मैंने घंटी बजाकर होटल के मुलाजिम को तलब किया, इनको कमरे से बाहर कर दो। उस वक्त उस बूढ़े का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा, लेकिन उसने कुर्सी छोड़ दी और किसी जहरीले नाग की तरह ताव खाकर उस जगह से बाहर चला गया। उसके चले जाने के बाद हम दोनों 5 मिनट तक बिल्कुल खामोश बैठे रहे। उस वक्त यूं महसूस हो रहा था कि हमारे कमरे में शैतान घुस आया था। मुलाजिम दोबारा वापस आ गया। उसने कहा, जनाब, आपने उसको नाराज करके अच्छा नहीं किया। ये बड़ा खतरनाक इंसान है। शाम के लोग तो इसकी शक्ल देखकर डर जाते हैं। खुदा खैर करे। सरवर ने कहा, बूढ़ा है, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। मुलाजिम ने कहा, जनाब, ये बूढ़ा तो जरूर है, लेकिन ये कुछ ऐसी कुव्वतों का मालिक है जिनको आज तक कोई नहीं समझ सका। मैंने कहा, तुम क्या बकते हो? वो तो कहता था कि खुद को हलाक कर लो और अभी मर जाओ। क्या कोई उसके इस मशवरे को कबूल कर सकता है? वो ये कहता था? मुलाजिम ने पूछा। हाँ, वो यही मुतालबा कर रहा था कि फौरन खुदकुशी कर लो। बिला वजह कोई किस तरह जान दे सकता है। मौत का मुतालबा अपनी जगह निहायत ही अजीब था। बूढ़ा पूरे इत्मीनान और पूरे वकार के साथ उस जगह से बाहर जा चुका था। उसकी आमद ने सनसनी फैला दी थी। वो अगरचे जा चुका था, मगर फिर भी हम इत्मीनान के आलम में थे। मैंने सरवर से कहा, मालूम होता है कि बूढ़ा हमारा दुश्मन है। इस वक्त तक जो कुछ हुआ है मुझे तो उसी की शरारत का नतीजा मालूम होता है। खुदा हमको उसके शर से बचाए। सरवर ने कहा, दादा, उसका बस एक ही इलाज है, वो ये कि मैं खुद उसको मार डालूं। इस तरह तमाम किस्सा पाक हो जाएगा। नहीं सरवर, अभी यहां तक मत सोचो। हो सकता है कि हम उसे हलाक करने में भी नाकाम रह जाएं। अगर उसे इसका डर होता तो वो इस जगह आने की किस तरह जुर्रत कर सकता था। वो यकीनन खुद पर कामिल भरोसा रखता है। शाम के 4 बजे के बाद हम होटल से बाहर आ गए। हबस कम हो चुका था और सूरज की वो हिद्दत भी बाकी न थी। बैरूत की सड़कों पर आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। लम्हा ब लम्हा रौनक में इजाफा हो रहा था। जो लोग धूप से महफूज रहने के लिए अपने घरों में छुपे बैठे थे, उन्होंने खरीदो फरोख्त के सिलसिले में बाहर निकलना शुरू कर दिया था। शहर से थोड़े फासले पर जुनूब की तरफ मिस्मार शुदा शहर के आसार फैले हुए थे। हमने भी उसी सिमत का रुख कर लिया। उस तबाहशुदा बस्ती के मुतालिक आम रिवायत ये थी कि वो किसी अजाब आसमानी के बायस तबाह हो चुकी है। एक फरलांग रास्ता तय करने के बाद एक ऊंचा सा पुराना गुंबद नजर आने लगा। खंडरात उस गुंबद को अपने दरमियान में लिए हुए थोड़े से हिस्से में फैले हुए थे। रास्ते में हमको 2 और आदमी भी मिल गए। वो भी इसी तरफ जा रहे थे। उनमें से एक ने बतलाया कि शहर बैरूत अगरचे कदीम है, लेकिन इस इलाके के सैकड़ों बरस के बाद यह आबाद हुआ था। कुछ न कुछ लोग हर रोज वहां पहुंच जाते और इंसानी आबादी के इस कदीम तरीन आसार को देखकर दरसे इबरत हासिल करते और कांप जाते थे। वहां 2-4 होटल भी थे जो हाल ही में बनाए गए थे। उनमें सिर्फ वो लोग रहते थे जो गैर मुल्की सियाहों और दूसरे लोगों की रहनुमाई करते थे। उनको इस शहर की बाबत बहुत कुछ मालूम था और शायद उन्होंने बहुत सी बातें इसकी दास्तान बनाने के लिए अपनी तरफ से भी शामिल कर ली थीं। चुनांचे कुछ देर के बाद हम वहां पहुंच गए। बड़े बड़े भारी पत्थर हर तरफ पड़े थे। कहीं दीवार सी खड़ी थी और किसी जगह कोई पत्थर का बना हुआ शिकस्ता सा सतून नजर आ रहा था। मैंने उस मैदान पर नजर डालते हुए कहा, अल्लाह अल्लाह, ये कितना खूबसूरत शहर होगा। तहजीब के अवलीन दौर में इस जगह की रौनक पूरे शबाब पर होगी। ये इनकलाबे ज़माना है कि आज हम एक बारौनक शहर की जगह ईंट पत्थरों के ढेर देख रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद हमें और लोग भी मिल गए जो छोटी छोटी टुकड़ियों की सूरत में घूम रहे थे। उस मैदान में सिर्फ गुंबद के अलावा एक भी इमारत सबत न थी। पत्थरों पर पानी के आसार नजर आ रहे थे, जिससे यह जाहिर होता था कि यह शहर तूफान नूह से पहले आबाद किया गया था। उस जगह एक बहुत पुराना दरख्त भी मौजूद था जिसे मुकद्दस ख्याल किया जाता था।
اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس کے سائے میں کئی بزرگ عبادت کر چکے ہیں۔ پھیلے ہوئے پتھر اور سنگریزوں کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا کیونکہ وہ ہزاروں برس سے کھلی فضا میں بکھرے پڑے تھے۔ ہم کافی دیر ویران کھنڈروں کو دیکھتے رہے۔ ایک صاحب اور بھی ہمارے ساتھ مل گئے تھے۔ ان کو تاریخ پر کافی عبور حاصل تھا، اسی لیے وہ اس جگہ کی ہر شے پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ہماری واپسی تقریباً 8 بجے ہوئی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سرور کو کچھ ٹھیک حالت میں دیکھتے ہوئے کہا، سرور ہمیں اب بیروت چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ ناک چشم بوڑھا خطرناک معلوم ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پر کسی قسم کا وبال آ جائے۔ سرور نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، دادا ہم لوگ پوری طرح ظلم کا شکار ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اب وہ ہمیں کیا برباد کرے گا؟ بلا وجہ اس جگہ قیام کرنا اور خطرے میں رہنا دانش مندی نہیں ہے۔ ہم سب کچھ تو دیکھ چکے ہیں، اس جگہ پڑے پڑے کیا لیں گے؟ چنانچہ اس وقت میں نے اس طرح سرور کو سمجھایا کہ وہ سفر کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے مجھے صبح ہوٹل چھوڑ دینے کا وعدہ کر لیا۔ کافی رات گئے تک ہم جاگتے رہے۔ اس کے بعد سرور اپنے پلنگ پر دراز ہو گیا۔ میری آنکھوں سے نیند غائب تھی اور رہ رہ کر یہی خیال پیدا ہوتا تھا کہ کہیں ناک چشم بوڑھا اس جگہ نہ آ جائے۔ اس کی باتوں سے اس کی نیت کا پتہ چل چکا تھا۔ دوسرے روز ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا اور بیروت سے رخصت ہو کر ملک شام کے ایک دوسرے شہر میں پہنچ گئے اور 1 ماہ بعد ہم یافا میں پہنچ گئے۔ سرور نے اس جگہ 1.5 ہفتہ قیام کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ ہم اس جگہ بھی ہوٹل میں ٹھہرے۔ ہمارے قریب کے کمرے میں ایک مختصر سا خاندان مقیم تھا۔ ان لوگوں میں ایک 8 سالہ بچی تھی جو اپنی توتلی زبان سے اس طرح باتیں کرتی کہ سرور کی بے اختیار ہنسی نکل جاتی۔ کمروں کے قریب ہونے کی وجہ سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح سرور کی طبیعت کسی قدر بہل گئی۔ ہمیں اس جگہ آئے ابھی 4 روز ہوئے تھے کہ ایک شام ساتھ والے کمرے میں رہنے والے نے ہم کو ایک عورت کی کہانی سنائی۔